Write a precis of the following passage and also suggest a suitable title. अब इसके अंदर हमें पता नहीं है कि इस पैसेज की लेंथ कितनी है, तो हमने इसके वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। फिलहाल हम एक अंदाजे से इसकी जो है वो गेस कर लेते हैं कितने वर्ड्स होंगे। अच्छा, अब इसमें वही टेक्निक्स जो हमने लास्ट फिरसी में यूज की थी, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर एक डिसाइड करेंगे कि इसका एक टाइटल क्या हो सकता है, ये पैसेज किस चीज के बारे में है। विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन्स, many forms of entertainments have been replaced. Lively programs like television serials and world news have removed from us the need to read books or papers, to listen to radios, or even to watch movies. In fact, during 1970s when televisions were first introduced, cinema theaters suffered great losses as many people chose to stay in the comforts of their homes to watch their favorite program. Indeed, the television brings the world into our houses. Hence, by staying at home and pressing some buttons, world happenings are immediately present before us. Children nowadays develop faster in language owing to the early exposure to television programs. At such tender age, it would be difficult for them to read books or papers. Thus, television programs are good source of learning for them. Furthermore, pronunciations by the newscasters, actors, or actresses are usually standardized. Hence, young children watching these programs will learn the right pronunciation too. Owning a television is also extremely beneficial to working parents who are usually too busy or tired to take their kids out for entertainments. Surrounded by the comforts of their home, the family can have a chance to get together and watch their favorite television programs. Of course, we should not be too carried away by the advantages of the television and overlook its negative points. Watching television programs takes away our need to read. Why bother to read the papers when we can hear them from television news reports? Why read books when exciting movies are screened? The lack of reading is unhealthy, especially to young children, as they will grow up only with the ability to speak but not to write. I have a neighbor whose 6-year-old child can say complete sentences like, I like cats, but told to write out the sentence is unable to do so. Not only are the writing skills of children affected, their thinking capabilities are also handicapped. Television programs remove the need to think. The stories, ideas, and facts are woven in the way television planners wanted. Exposure to such opinions and the lack of thinking opportunities will hinder the children's analyzing ability. Despite the advantages of watching television programs, personally, I think that choosing the middle path, which is to select television viewing and not overindulging in the habit, should be the best solution to reconcile both the merits and demerits of owning a television. ठीक है, अब हमने इसकी फर्स्ट रीडिंग दे दी। अब इसमें हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के बारे में है। तो वही टेक्निक
कौन सा वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें हमें नजर आता है कि टेलीविजन जो है वो टेलीविजन, वॉचिंग टेलीविजन, ये बार बार रिपीट हो रहा है। टेलीविजन का वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन प्रोग्राम्स। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि ये पैसेज टेलीविजन के बारे में है। ये हो गया उसका जनरल एस्पेक्ट। टेलीविजन के कौन से सब एस्पेक्ट के बारे में है, तो यहाँ पे कल हमने डिस्कशन की थी कि एक मदर सेंटेंस भी होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका मदर जो सेंटेंस है वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑनिंग अ टेलीविजन। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रफ टाइटल पता चल जाता है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन। तो ये एक हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसका रफ टाइटल क्या होगा। चलें, यहाँ से जहन में रख लेते हैं। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इसकी सेकंड रीडिंग जो देंगे उसमें पैराग्राफ टू पैराग्राफ अप्रोच रखेंगे। उसमें हर पैराग्राफ की जो है वो एक उसका क्रक्स हम उसके बराबर में लिख लेंगे कि ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में। अब पहला पैराग्राफ है, with the invention of television many forms of entertainment have been replaced। अच्छा, पहला ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस के अंदर है ये सेंटेंस। with the invention of television many forms of entertainment have been replaced। तो हम कोशिश करते हैं कि जो सेंटेंसेस हैं एक्टिव फॉर्म में लिखें। एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ब्रीफ होते हैं, कॉन्साइज होते हैं एक्टिव सेंटेंसेस, और उसमें से थोड़ा बहुत रिडंडेंसी रिमूव हो जाती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन हैव रिप्लेस्ड मैनी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन हैव रिप्लेस्ड मैनी फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक्टिव हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस। अब यहाँ पे डिटेल्स, lively programs like television serial world news have removed from us the need to read books। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ गया। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन तो हम यूज नहीं करते, तो हम इसको थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। जस्ट लाइक हम कह सकते हैं रिमूव फ्रॉम पीपल द नीड टू रीड बुक्स और पेपर्स। मीन्स क्या कह रहा है कि टेलीविजन के आने से जो किताबें पढ़ते थे लोग या पेपर्स पढ़ते थे, उसकी जरूरत खत्म हो गई है। टू लिसन टू रेडियो, टू वॉच मूवीज। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर बुक्स, पेपर्स, रेडियो, मूवीज, आगे जाके ये सिनेमा। तो हमने एक टेक्निक सीखी थी, जनरलाइजेशन की टेक्निक। एक तो जनरलाइज वर्ड हमने यूज कर दिया एंटरटेनमेंट। तो रेडियो हो गया, मूवीज हो गए, सिनेमा हो गया, ये एंटरटेनमेंट के अंदर आ गया। लेकिन इसके साथ बुक्स है, पेपर्स है, तो हम इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं। बुक्स, मैगजीन्स, पेपर्स, तो हम कह सकते हैं ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ऐड कर दें द इन विद द
Invention of television have replaced many forms of entertainment and information. ठीक है, अब ये जो पहला पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। ये क्या कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है पैसेज को कि टेलीविजन के आने से क्या चेंजेस आई हैं, क्या रेवोल्यूशन आया है। तो इसका क्रक्स ये आ गया हमारे पास के रेवोल्यूशन इन एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन इन एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो डिटेल्स वगैरह दी हैं, ड्यूरिंग 1970s व्हेन टेलीविजन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस सिनेमा थिएटर्स सफर्ड अ ग्रेट लॉसेस। ये फर्दर एलाबोरेशन है। ये क्या, ये फर्दर एलाबोरेशन कर रहा है। इसको हमने एलाबोरेशन को रिमूव कर देना है। जस्ट जो मेन क्रक्स है इसका, इसको जहन में रखना है। तो यहां पे ये हो गया, टेलीविजन हैज रिप्लेस ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन। अब कौन से थे ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन? बुक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड सिनेमा। बजाय इसके कि हम पूरी उसकी डिटेल लिखते, हमने उसको ब्रीफ और कॉन्साइज वे में जो रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन थी उसको हमने यहाँ पे रिटेन कर दिया। ठीक है, तो ये पहले पैराग्राफ की एक हमारे पास ये समरी आ गई। अच्छा, फिर जब हम चलते हैं पैराग्राफ 2 के ऊपर, पैराग्राफ 2 क्या है? पैराग्राफ 2 बेसिकली ये एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन, मेरिट्स ऑफ टेलीविजन, इसके ऊपर है। अभी हम पढ़ते हैं तो उससे भी अंदाजा हो जाएगा। द टेलीविजन ब्रिंग्स द वर्ल्ड इनटू आवर हाउसेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे इसने क्या यूज किया है? फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है। यहाँ पे कह रहा है कि टेलीविजन ब्रिंग्स द वर्ल्ड इनटू आवर हाउसेस, मीन्स पूरी दुनिया को हमारे घर में लाया है। अब फिगरेटिव लैंग्वेज ये होती है, मेटाफोरिकल लैंग्वेज ये होती है कि उसकी प्लेन मीनिंग जो होती है वो हम नहीं लेते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका मफहूम ये होगा कि पूरी दुनिया के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हम यहाँ पे प्लेन लैंग्वेज यूज करते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज में कभी कभार इडियम्स वगैरह भी आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हर फादर किक्ड द बकेट। उसका मतलब ये नहीं कि उसके फादर ने बकेट को लात मारी है, उसकी मीनिंग ये है कि उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, जैसे लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अब कोई परिंदा आके उसने मुझे नहीं बताया, इसकी मीनिंग ये होगी कि मुझे कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है। तो प्लेन मीनिंग हम यूज करते हैं, उसकी टेक्निक्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे। द टेलीविजन ब्रिंग्स द वर्ल्ड इनटू आवर हाउसेस। टेलीविजन गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू नो द वर्ल्ड इवेंट्स। Hence, by staying at home and pressing some buttons, world happenings are immediately present before us. तो इसने खुद ही इसकी जो है वो पैराफ्रेजिंग कर दी है। वर्ल्ड हैपनिंग्स आर इमीडिएटली बिफोर अस। तो हम लिख सकते हैं कि टेलीविजन प्रोवाइड्स अस अपॉर्चुनिटी टू वॉच वर्ल्ड हैपनिंग्स सिटिंग एट होम। तो इन दोनों सेंटेंसेस की एक समरी हो गई। अब फर्दर इसमें बता रहा है कि क्या एडवांटेज है, किसको एडवांटेज है। तो चिल्ड्रन की बात कर रहा है। चिल्ड्रन नाउअडेज डेवलप फास्टर इन लैंग्वेज। ठीक है, मैंने क्या कहा था कल के
जो टाइटल है उसमें क्वेश्चन होंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या मेरिट्स हैं? वर्ल्ड इवेंट्स को हम देखते हैं। किसके लिए मेरिट्स हैं? चिल्ड्रन के लिए। क्या है? कि लैंग्वेज स्किल्स जो है वो जल्दी सीख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से सीखते हैं? एक्सपोजर टू टेलीविजन प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। एट सच टेंडर एज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीड बुक्स और पेपर्स, thus television programs are good source of learning for them। तो इसको हम पैराफ्रेज कर सकते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स आर गुड सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। Furthermore, pronunciations by the newscaster, actors or actresses। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई, न्यूज़कास्टर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, मीडिया पर्सन्स आर यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड। Hence, young children watching these programs will learn the right pronunciation too। ठीक है, एक तो एडवांटेज क्या हो गया कि लैंग्वेज स्किल्स सीखते हैं, और उसका फर्दर एडवांटेज के राइट प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। तो यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें ब्रीफली उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, या जिस तरह आउटलाइन बनाई थी हमने, आउटलाइन बना सकते हैं। तो वही चीज मेरिट डीमेरिट्स की बात हो रही है, तो मेरिट और डीमेरिट हमारे पास आ गए। उसके बाद दूसरा क्या मेरिट है? Owning a television is also extremely beneficial to working parents। ऊपर चिल्ड्रन की बात हो रही थी, नीचे बात हो रही है वर्किंग पेरेंट्स की। ठीक है, हु आर टू बिजी और टायर्ड टू टेक देयर किड्स आउट फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, टू बिजी तो हम बिजी पेरेंट्स लिख सकते हैं। क्या बेनिफिट है? द फैमिली कैन हैव अ चांस टू गेट टुगेदर एंड वॉच देयर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम। ठीक है, बिजी पेरेंट्स कैन वॉच देयर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम विद देयर चिल्ड्रन, विद देयर फैमिली मेंबर्स। पैराफ्रेजिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, तो ये आ गया इसका क्रक्स पूरा इस पैराग्राफ का, कि एडवांटेजेस क्या थे। एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन के बारे में था ये। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, वॉचिंग टेलीविजन हैज सेवरल। अच्छा, इसको जो है ब्रेक कर दिया हमने सेंटेंस में, ये जो ऊपर पैराग्राफ था जिस तरह आउटलाइन बनाई थी, वॉचिंग टेलीविजन हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Television has allowed people to watch world events at their home. Television exposes children to standardized speech by newscasters and actors, helping them learn correct pronunciations. Watching television promotes correct pronunciation through exposure to standardized speech on TV. Television offers a convenient entertainment option for busy parents, allowing families to relax and spend time together at home। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके हमने सेंटेंसेस में, जिससे हमारा रफ ड्राफ्ट बनेगा। फिर हम चलते हैं पैराग्राफ 3 के ऊपर। पैराग्राफ 3 जो है वो, उसका क्रक्स ये था कि ये ऊपर एडवांटेजेस बता दिए, अब इसका क्रक्स इसने ये निकाला है कि डिसएडवांटेजेस क्या है। ऑफ कोर्स we should not be too carried away by the advantages of the television and overlook its negative points। ठीक है, ये बेसिकली इसने ट्रांजिशनल सेंटेंस लिखा है ऊपर वाले पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए।
तो ट्रांजिशनल सेंटेंस को फिलहाल हमने कट कर दिया। तो यहां से जो है वो वाचिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स टेक अवे अवर नीड टू रीड। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन, देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन आल्सो। कौन से डिसएडवांटेजेस हैं? वाचिंग टेलीविजन प्रोग्राम टेक्स अवे अवर नीड टू रीड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको पैराफ्रेज कर दिया। टेलीविजन डिस्करेजेस रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे देखें, व्हाई बोदर टू रीड द पेपर व्हेन वी कैन हियर देम फ्रॉम द टेलीविजन न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, रिटोरिकल वे में लिखा था तो हमने इसको सिंपल वे में लिख दिया। व्हाई रीड बुक्स व्हेन एक्साइटिंग मूवीज आर स्क्रीन्ड। तो रिपीटेशन हो गई इसकी, तो रिपीटेशन को हम रिमूव कर देंगे। टेलीविजन डिस्करेजेस रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर स्पेशली इन चिल्ड्रन। द लैक ऑफ रीडिंग इज अनहेल्दी स्पेशली टू यंग चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ये जो फर्दर जो डिटेल्स थी इसको हमने रिमूव कर दिया और ये जो चिल्ड्रन की बात थी यहीं पे इसी में ऐड कर दी। एज दे विल ग्रो अप ओनली विद द एबिलिटी टू स्पीक बट नॉट टू राइट। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज हो गया? इसका डिसएडवांटेज ये हुआ, टेलीविजन नेगेटिवली अफेक्ट्स राइटिंग स्किल्स ड्यू टू लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 2 सेंटेंस में, उसमें उसका पूरा क्रक्स आ गया। अब यहाँ पे एनेक्डोट दे रहा है, एनेक्डोट एलाबोरेशन, इसको हम कट कर देते। आई हैव अ नेबर whose 6-year-old child can say complete sentences like I like cats, but when told to write out the sentence is unable to do so। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो एनेक्डोट्स होंगे, एलाबोरेशंस होंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल्स होंगे, उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, हमने उस क्वेश्चन को एड्रेस करना है जो टाइटल के अंदर छुपा हुआ है, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। तो डिसएडवांटेज ये आ गया, डायरेक्ट हमने लिखा कि टेलीविजन डिस्करेजेस रीडिंग बुक्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स को डिस्करेज करता है, रीडिंग प्रैक्टिस को डिस्करेज करता है। नॉट ओनली आर द writing skills of children affected, their thinking capacities are also handicapped। मीन्स राइटिंग के ऊपर भी इफेक्ट है उसका नेगेटिव, रीडिंग के ऊपर भी है, और थर्ड जो है वो इसमें मेन आइडिया क्या है कि उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज अफेक्ट होती हैं। कैसे इफेक्ट होती हैं? टेलीविजन प्रोग्राम्स रिमूव द नीड टू थिंक। द स्टोरीज आइडियाज एंड फैक्ट्स आर वोवन इन द वे टेलीविजन planners wanted। एक्सपोजर टू सच ओपिनियंस एंड लैक ऑफ थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज। मीन उसमें हमें सोचने का मौका नहीं मिलता, सारी चीजें बनी बनाई दे देते हैं। तो इसको हमने इस तरह से पैराफ्रेज करके लिख दिया, टेलीविजन लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग एज कंटेंट इज प्रेजेंटेड विदाउट द नीड फॉर एनालिसिस और पर्सनल इंटरप्रिटेशन। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर अपने रिमार्क्स भी देते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं, लेकिन टेलीविजन हम लोग पैसिव वॉचर के तौर पे देखते हैं और उसमें कोई भी एनालाइज करने की नीड नहीं होती। तो उस वजह से हमारी थिंकिंग जो कैपेसिटीज हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो इसका जो है वो हमने ये पॉइंट्स बना लिए, आउटलाइन बना ली पैराग्राफ नंबर 3 की, और इसका जो था वो पैराग्राफ 3 का क्रक्स ये था, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। ठीक है, तो इसके 3 पैराग्राफ यहाँ तक हो गए। पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन, तीसरे में डिसएडवांटेजेस। अब लास्ट जो पैराग्राफ है ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ है। अब यहाँ पे देखें, डिस्पाइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ वाचिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स, पर्सनली आई थिंक दैट
चूजिंग मिडिल पाथ, सजेशन दे रहा है यहाँ पे। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि क्या करना चाहिए, चूजिंग मिडिल पाथ। क्या होना चाहिए मिडिल पाथ, टू डू सिलेक्टिव टेलीविजन व्यूइंग एंड नॉट अवर इंडल्जिंग। लिमिटेड वे में देखना चाहिए टेलीविजन, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीवी देखते रहे, या आज के दौर में सोशल मीडिया यूज करते हैं जिस तरह से बच्चे, तो सिलेक्टिव टेलीविजन व्यूइंग होनी चाहिए। इन द हैबिट शुड बी बेस्ट सॉल्यूशन टू रिकंसाइल बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टेलीविजन। ठीक है, ये किस चीज की बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो इसको जो है वो नीचे हमने इसके पॉइंट्स बना लिए कि नीड फॉर बैलेंस, बैलेंस की जरूरत है। Excessive TV viewing can be harmful, especially to children's cognitive development. Selective and moderate TV consumption is suggested as the best approach. अब यहाँ पे राइटर ने फर्स्ट पर्सन यूज किया है, तो हमने फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करना। जैसे इसने कहा आई पर्सनली थिंक, तो हम ये भी लिख सकते हैं राइटर सजेस्ट दैट, राइटर रिकमेंड्स। ठीक है, हमने यहाँ पे पैसिव में लिख दिया, राइटर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्टिव में लिखेंगे तो राइटर सजेस्ट, अगर पैसिव में लिख रहे हैं तो इज सजेस्टेड। अब इससे हम इसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे, जो हमने ऊपर पॉइंट्स जो नोट कर लिए उससे इसका रफ ड्राफ्ट बनाएंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को पिरसी दे दूंगा जिसको आपने सॉल्व करके सेंड करना है। तो रफ ड्राफ्ट बन गया, टेलीविजन हैज रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन लाइक बुक्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड सिनेमा। वही वाले पॉइंट्स हैं, उसमें कोई ज्यादा हमने चेंजिंग नहीं की। वॉचिंग टेलीविजन हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हमने ये जनरल सेंटेंस लिख दिया, हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहले हम एडवांटेजेस को अनफोल्ड करेंगे। टेलीविजन हैज अलाउड पीपल टू वॉच वर्ल्ड इवेंट्स एट देयर होम। टेलीविजन exposes children to standardized speech by newscasters and actors। ठीक है, मीडिया पर्सन्स भी लिख सकते हैं, हेल्पिंग देम लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Watching television promotes correct pronunciation through exposure to standardized speech on TV. There are also some disadvantages of television। अब यहाँ पे disadvantages की बात कर दी हमने। क्या disadvantages हैं? Television discourages reading books and newspapers, especially in children. Television negatively affects writing skills due to lack of reading practice। वही जो पॉइंट्स हमने बनाए थे उसको हमने इसके अंदर पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि पिरसी शुड बी इन वन पैराग्राफ। ऊपर जो पैसेज था 4 पैराग्राफ में था, तो उन चारों पैराग्राफ के जो मेन आइडियाज थे वो हमने एक ही पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे अक्यूमुलेट कर दिए। तो टेलीविजन नेगेटिवली अफेक्ट्स राइटिंग स्किल्स ड्यू टू लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। टेलीविजन लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग as content is presented without the need for analyzing our personal interpretations. Excessive TV viewing can be harmful, especially to children's cognitive development। अब यहाँ पे ये जो फोर्थ पैराग्राफ था उसका क्रक्स यहाँ पे आ गया, और लास्ट में जो है सिलेक्टिव एंड मॉडरेट टेलीविजन कंजप्शन इज सजेस्टेड एज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब देखें इसका जो हमने रफ टाइटल बनाया था। कल हमने कहा कि ओपनिंग सेंटेंसेस में टाइटल हाईलाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे ये टाइटल जो है वो हाईलाइट हो गया। टेलीविजन हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स।
अब इसके अंदर हमने फाइनल ड्राफ्ट जब बनाएंगे तो इसमें कोहिरेंस और कनेक्टिविटी के टूल्स ऐड कर देंगे। अगर ऊपर कोई ग्रामर की मिस्टेक्स थी, अगर कोई यहाँ पे वर्ड्स हमारे ज्यादा हो गए थे, तो उन वर्ड्स को जो है हम काउंट करके और रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें हमने कुछ कनेक्टर्स लगाए हैं। जैसे हमने कहा कि वॉचिंग टेलीविजन हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन रेज होगा क्या एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, तो हमने फर्दर इसको जो है वो कोहिरेंस डालने के लिए ये वर्ड डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन हैज अलाउड पीपल टू वॉच वर्ल्ड इवेंट्स एट देयर होम। अभी इसी के बारे में ही डिस्कशन हो रही है, एडवांटेजेस के बारे में। तो इन एडिशन, फर्दर मोर, मोर ओवर, कनेक्टर लगा दिया यहाँ पे। टेलीविजन एक्सपोजेस चिल्ड्रन टू स्टैंडर्डाइज्ड स्पीच बाय न्यूज़कास्टर्स एंड एक्टर्स, हेल्पिंग देम लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे एक और कनेक्टर लगा दिया। लेकिन जब डिसएडवांटेजेस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन द अदर हैंड, हाउ एवर, ऑन द कंट्रास्ट, कंट्रेरिली, इस तरह का कनेक्टर लगाएंगे। देयर आर आल्सो सम डिसएडवांटेजेस। कौन से डिसएडवांटेजेस है? फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पे कोहिरेंस के लिए कुछ टूल्स वगैरह यूज कर दिए। फॉर इंस्टेंस, क्या होता है कि टेलीविजन डिस्करेजेस रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर स्पेशली इन चिल्ड्रन। तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? एज अ रिजल्ट, इट नेगेटिवली अफेक्ट्स चिल्ड्रंस राइटिंग स्किल्स ड्यू टू लैक ऑफ रीडिंग प्रैक्टिस। फिर और डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, तो मोर ओवर, टेलीविजन लिमिट्स क्रिटिकल थिंकिंग, तो यहाँ पे भी कनेक्टर लगा दिया। फिर लास्ट में जब हम उसको कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर, यहाँ पे कनेक्टर लगा दिया। एक्सेसिव टीवी व्यूइंग कैन बी हार्मफुल स्पेशली टू चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, लास्ट में अब कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख रहे हैं, तो इन कंक्लूजन, लास्टली, फाइनली, इन कंक्लूजन, सिलेक्टिव एंड मॉडरेट टीवी कंजम्पशन इज सजेस्टेड एज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसमें वर्ड काउंट्स लिखेंगे हम, कितने वर्ड्स हैं। अब हम दोबारा जो है वो, जो हमने टाइटल बनाया था, उसको देखेंगे कि क्या ये टाइटल सही है या इसमें फर्दर इसकी फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे फाइनल ड्राफ्ट जब लिखा, तो इसमें ये इसकी हेडिंग हम नहीं देंगे। जब हम एग्जाम वगैरह में लिखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर टाइटल लिख देंगे। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो यहाँ पे हमने इसका टाइटल लिखते हैं ना, टाइटल ऊपर लिखेंगे। टाइटल था टाइटल हमने पहले देखा था, इसके अंदर एक मदर सेंटेंस मौजूद था। इसके अंदर ये मदर सेंटेंस था, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन। और हमने जो डिस्कशन की वो भी इसी के बारे में ही थी। तो यहाँ पे हम इसका टाइटल लिख देंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ। इसको हटा दें तो भी कोई इशू नहीं है। टाइटल के रूल्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शंस को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर में होंगे। टाइटल हम बीच में लिखेंगे, टाइटल इसके बीच में आ जाएगा, और इसकी जो है वो यहाँ पे। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन। तो ये जो है वो पैसेज मेरिट्स और डीमेरिट्स को, पहला सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिर सी जो है वो
कंप्लीट है इसके अंदर। जो भी फाइन ट्यूनिंग करनी थी वो हमने फाइनल ड्राफ्ट में कर ली। चले अभी ये इसका टाइम